Hello, welcome back to SSTN classes. Hope you all are doing good. And in this part, we'll cover the next problem that is based on distance and speed. So here's the question. Ved travels 600 km to his home partly by train and partly by car. Some of the distance he is covering by train and rest by car. First condition given है, he takes 8 hours if he travels 120 km by train and the rest by car. Next condition is he takes 20 minutes longer, that means 8 hours and 20 minutes if he travels 200 km by train and rest by the car. And we are to find the speed of the train and the car. So for this question, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है हम उसको लेट कर लेंगे. So first of all, let the speed of the car and train be firstly we'll take the speed of train. Let the speed of train be x km per hour, whereas the speed of car be y kilometers per hour. And now taking the case 1, in first case condition is he takes 8 hours if he travel 120 km by train and the rest by car. That is distance covered by car and distance covered by train. If he's taking 8 hours, at that case 120 km by train and rest by car, that means total is 600 minus 120, that will be 480 kilometers. Similarly दोनों केसेस का टाइम लेंगे, टाइम taken by car and by train. Time for car, distance upon speed, 480 upon x, whereas for train 480 upon y, because speed of the car is y, and whereas for the train be 120 over x. This will be in hours. Now total time for whole journey in first case is 8 hours. That means time taken by car 480 by y plus time taken by train 120 by x equals to 8 hours. ये दोनों भी आवर्स में है और ये भी टाइम आवर्स में. सिंप्लीफाई करने पे इन दोनों में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं एंड वी विल गेट 15 over x plus 60 over y equals to 8. 8 and 8 got cancelled और हमें यहाँ से कंडीशन मिल गई 15 over x plus 60 over y equals to 1 या फिर -1 equals to 0. तो इसी वे में हम सेकेंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको इसी फॉर्म में लेके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. और सेम वे सेकेंड केस के लिए सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस ही इज टेकिंग 20 मिनट्स लॉन्गर देन फर्स्ट केस इफ he travels 200 km by train, 200 by train and rest by car. That means 600 minus 200 will be 400 km. 400 km by car and 200 by train. Same way टाइम आ जाएगा दोनों केसेस का. टाइम will be 400 over y, whereas for train will be 200 upon x hours. कंडीशन गिवन है 20 मिनट्स वो लॉन्गर ले रहा है फर्स्ट केस से, दैट इज 400 over y
plus 200 over x equals to 8 hours and 20 minutes. 8 hours 20 minutes, that will be 8 into 6 0 60. ये आपका मिनट्स में आ जाएगा. 8 hours और 20 minutes. जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, या हम ये कर सकते हैं 20 minutes को आवर्स में चेंज कर लें, तो ये आपके पास आएगा 8 plus 20 over 60. मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, दैट मीन्स 8 plus 1 over 3. 8 plus 1 over 3 will be 3 8 जा 24 plus 1 25 by 3. LCM लेके आपके पास 25 by 3 आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपकी ये कंडीशन रहेगी, जिसकी वजह से कंप्लीट इक्वेशन विल बी 200 over x plus 400 over y equals to 25 over 3. Now taking 25 as common, we'll get 8 over x plus 16 over y and 25 over 3. 25 cancelled, और आपके पास कंडीशन आ जाएगी 8 over x plus 16 over y equals to 1 over 3. So we got these two equations, number 1 and 2. सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे. लेफ्ट साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी सिंप्लीफाइड वाली, 24 over x plus 48 over y equals to 1. तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. इन दोनों को अब हमें सॉल्व करना है. लास्ट में हमने एक मेथड किया था जिसमें हमें फ्रैक्शन में टर्म्स हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको लेट कर लेंगे. लाइक यहाँ हमारे पास 1 over x और 1 over y है, तो 1 over x की वैल्यू हम लेट कर लेंगे u और 1 over y की वैल्यू लेट कर लेंगे v, जिनकी वजह से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में चेंजेस आ जाएंगे और वो इक्वेशंस बन जाएंगी 15u plus 60v minus 1 या equals to 1. सेकेंड इक्वेशन इसको हम a लिख देते हैं या नंबर थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं. जो सेकेंड इक्वेशन है वो चेंज होकर 24u plus 48v equals to 1. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, बी इक्वेशन. हम अपने अकॉर्डिंगली इसको नंबरिंग कर सकते हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. वो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी तो सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट था. हमने इनकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म को सिंपल नंबर, सिंपल वेरिएबल्स लेट कर लिया और उसको पुट करके ये इक्वेशंस बना ली. अब इन इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. वो हम सॉल्व करके वैल्यूज हमें मिलेंगी u और v की. u की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1/60, वेयर v की वैल्यू आ जाएगी 1/80. बट हमें फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, जो हमने लेट की थी x और y की फॉर्म में. तो हमें x और y की वैल्यूज चाहिए. तो u को हमने पुट किया था 1/x, v को हमने पुट किया था 1/y, जिनको कंपेयर करने पे x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी. सो x की वैल्यू कंपेयर करने पे इज 60 और y की वैल्यू इज 80. दैट मीन्स हमने ट्रेन और कार की जो वैल्यूज थी, उनकी स्पीड की वैल्यूज थी, वो फाइंड कर ली. सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द कार, ये दोनों हमारे पास आ गई. ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर. इसी वे से हम लोग डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू बोथ प्रॉब्लम्स. सो इन सेम वे
इसमें भी आपको स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है स्टिल वाटर में, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम की स्पीड भी फाइंड करनी है और बोट की स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर में। तो सेम वही जो हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर and that of stream, speed of the stream be y kilometers per hour। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमें इसकी कंडीशन देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अब हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की लेट कर ली, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्पीड फाइंड करनी है अपस्ट्रीम एंड स्पीड फाइंड करनी है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, आपको इसको इस चीज से याद रखना है। अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट जा रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वेयर एज डाउनस्ट्रीम मीन्स वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्पीड अपस्ट्रीम, बोट की स्पीड अपस्ट्रीम जाने पे क्या होगी, स्टिल वाटर में जितनी उसकी स्पीड है माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम जब वो जा रहा है मतलब वो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स स्टिल वाटर में जितनी उसकी स्पीड है माइनस जो स्ट्रीम की स्पीड है। स्पीड है तो किलोमीटर्स पर आवर। सिमिलर वे डाउनस्ट्रीम है तो जो उसकी स्पीड है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड हमें पहले बोट की स्टिल वाटर में ली, स्ट्रीम की स्पीड ली, उसके अकॉर्डिंगली हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड ले सकते हैं। सिमिलरली हम उनका टाइम लेंगे, टाइम फॉर अपस्ट्रीम एंड टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या चेंजेस आएंगे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले वो बोल रहे हैं बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। टोटल टाइम उसने दे दिया फर्स्ट कंडीशन का 7 आवर्स, टोटल टाइम इज 7 आवर्स। अब हमें यहाँ पे अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम ऐड करना है। सबसे पहले हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम ये फर्स्ट केस के लिए फाइंड कर लेंगे। अब अपस्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा, अपस्ट्रीम वो कितना कवर कर रहा है 32 किलोमीटर्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई। सेम वे डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम वो डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर्स जो वो ट्रेवल कर रहा है और स्पीड इज x प्लस वाई। तो दोनों के केसेस में आपने टाइम तो ले लिया, टोटल टाइम आपको गिवन है, तो आप दोनों को कंबाइन करोगे और इक्वेशन फॉर्म कर दोगे 32 ओवर x माइनस वाई प्लस 36 ओवर x प्लस वाई। तो ये आपकी कंडीशन फर्स्ट वाली आ जाएगी। इन सेम वे हम सेकेंड कंडीशन भी लेंगे। सेकेंड कंडीशन में बोला इट कवर्स 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए वो 40 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं और डाउनस्ट्रीम के लिए वो 48 कवर कर रहे हैं। तो यहाँ हम चेंजेस कर देंगे डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं तो टाइम में ही चेंजेस आएंगे। स्पीड तो हमने लेट की है तो वो वही रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली टाइम में जो चेंजेस आए अब कंडीशन फॉर्म करेंगे। टाइम फॉर अपस्ट्रीम दैट इज 40 ओवर x माइनस वाई प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम 48 ओवर x प्लस वाई। टोटल टाइम सेकेंड केस में वो कितना ले रहा है 9 आवर्स। तो ये आपकी दोनों कंडीशंस बन गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। सेम वे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1 ओवर x था इसका कॉफिशिएंट, 1 ओवर y था, जिसको हम सिंप्लीफाई या हम बोलें कि सॉल्व कर रहे हैं x और y की वैल्यूज के लिए, तो वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमने 1 ओवर x को और 1 ओवर y को पुट किया था, इसमें हम 1 ओवर x माइनस वाई और 1 ओवर x प्लस वाई को पुट करेंगे। तो जब आप 1 ओवर x माइनस वाई को और 1 ओवर x प्लस वाई को पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस में चेंजेस आएंगे। 1 ओवर x माइनस वाई को हम लेट कर लेते हैं u और 1 ओवर x प्लस वाई को v।
तो 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई की वैल्यूज पुट करने पर जो चेंजेस आएंगे तो उससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 32, दिस इज 32 ओनली, 32u प्लस, क्योंकि हमने 1/x माइनस वाई को पूरी वैल्यू को पुट कर दिया u, प्लस 36v इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट इक्वेशन 40u प्लस 48v इक्वल्स टू 9. तो ये आपकी जो सिंप्लीफाई करनी है, जो आपको सॉल्व करनी है, वो इक्वेशंस दो मिल गई. सिमिलरली इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी u और v की वैल्यूज आ जाएंगी. वो मेथड्स आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हो. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्कस्ड बिकॉज वो CBSE सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, डिडक्ट कर दिया वो टॉपिक. बट एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप वीडियोस देख सकते हो. तो सॉल्व करने पे u की वैल्यू आपको मिलेगी 12/96, जिसको रिड्यूस करने पे 12 1s are 12 8s are. तो रिड्यूस करने पे आपके पास u की वैल्यू है 1/8. सिमिलरली v की वैल्यू इज 8/96, जिसको रिड्यूस करोगे तो ये 1/12 आ रहा है. अब u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई. u और v का मतलब क्या आया आपके पास? 1/x माइनस वाई की वैल्यू और 1/x प्लस वाई की वैल्यू. 1/x माइनस वाई की, क्योंकि हमें u पुट किया था इसको, तो ये 1/8 आ गई और इसकी 1/12 आ गई. जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कंडीशंस आएंगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 कंपेयर करने पे. अब इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है. वहां से जो x की और y की वैल्यूज आएंगी वो आपकी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रही हूँ. एलिमिनेशन के लिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऑपोजिट साइंस है. ऐड करने पे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और x प्लस एक्स विल बी 2x, 8 प्लस 12 विल बी 20. सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू आपकी 10 आ रही है. अब जब x की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी y की. हम पुट करते हैं सेकंड में, तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12. 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2. So speed of the boat in still water is 10 kilometers per hour and speed of the stream be 2 kilometer per hour. If you like the video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for another update of our video.